Hello guys, again, you're welcome in our YouTube channel Vivekananda Academy of Learning. So guys, if you haven't been subscribed our channel, just do subscribe and press bell icon to get notification from our YouTube channel. Now in today's video, we are going to learn about very important topic of the education field. Now in education, there is classroom. Means each and everyone has to manage classroom. What are the approaches that are included in their syllabus? So likewise, today we are going to learn about types of classroom. There are two types of classroom which we are going to differentiate. The first one is traditional classroom, and the second one is, which one is second? Constructivist. In this topic, today we are going to learn about what are the characteristics, rather what are the major differences in constructivist classroom as well as in traditional classroom. Now, firstly, let us be clear about the traditional classroom and constructivist classroom. Firstly, traditional classroom is ancient system which is followed in ancient time, as well as constructivist classroom. In this is based on modern approach, because nowadays what we are learning and what is the system and what is the constructive classroom, means modern classroom management system is the constructivist classroom, and on the other hand traditional classroom is an ancient education system. Means traditional classroom means, instead if we have to understand in Hindi, then traditional classroom means जब हम ancient time में कुछ पढ़ते थे और एंशिएंट टाइम में एजुकेशन या क्लासरूम की जो भी सिस्टम थी उसके बारे में ट्रेडिशनल क्लासरूम और कंस्ट्रक्टिव यानी कि मॉडर्न क्लासरूम के बारे में आज हम डिफरेंस समझने जा रहे हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल क्लासरूम एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट classroom. So let us learn one by one. Yeah, the first point is traditional classroom. It is based on basic skills. यानी in traditional classroom means in ancient time कोई important यानी कि big concept पे कोई skill नहीं दी जाती थी, but basic skill दी जा सकती स्टूडेंट्स को, जैसे कि स्टूडेंट्स किसी को पढ़ा सके और अपने आप को नॉलेज दे सके. उसके बाद इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम इट इज फोकसेस ऑन द बिग कॉन्सेप्ट, यानी वहां आज के दिन यानी कंस्ट्रक्टिव में क्या है, इट इज फोकसेस ऑन द बिग कॉन्सेप्ट्स, यानी कोई लिमिटेड नॉलेज नहीं है, इट इज वाइड कॉन्सेप्ट एज वेल. ओके, नाउ आई होप द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू. नाउ इन द सेकंड पॉइंट ऑफ द ट्रेडिशनल क्लासरूम, generally based on textbook, as we have learned that in ancient time the teacher used to have only textbook, यानी टेक्स्ट बुक्स के आधार पर ही टीचर स्टूडेंट्स को बढ़ाता था, यानी कि वो एक सिस्टम थी, वो एक प्रकार का क्लासरूम था. बट इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम जनरली बेस्ड ऑन डिफरेंट रिसोर्स मटेरियल्स, यानी आज के दिन क्या होगा है, आज डिफरेंट रिसोर्सेज है आपके पास, लाइक आपके पास रेफरेंस हो गए, उसके बाद गूगल है, यूट्यूब है, ये सब डिफरेंट रिसोर्सेज है ताकि आप पढ़ सके. पहले के ज़माने में लैपटॉप भी नहीं थे, स्मार्टफोन भी नहीं थे और टैबलेट भी नहीं थे, तो आपको कुछ भी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक टीचर था और टेक्स्ट बुक था, वही रिसोर्सेज था. देन द थर्ड पॉइंट ऑफ द ट्रेडिशनल क्लासरूम इज इट इज प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन ऑफ द टॉपिक एंड यूनिट, यानी वो क्या था, ओनली रोट मेमोराइजेशन, यानी आपको सिर्फ मगअप करवाया जाता था बाय द टीचर, यानी कि आपको सिर्फ वो कंटेंट या नॉलेज था उसका सिर्फ मेमोराइजेशन करना था, यानी कि सिर्फ मगअप करना था. But in constructive classroom, in today's classroom, it will be facilitator and sharing knowledge between student and teacher. Means it is not only not memorization, but it is facilitator. यानी there will be suppose आप कोई ग्रुप बनाते हो और आप कोई ग्रुप का अच्छा स्टूडेंट्स ग्रुप लीडर बन जाए और वो जो नॉलेज है उसके पास अंडरस्टैंडिंग लेवल का वो आपके साथ शेयर करे, तो ये क्या होगा, नॉलेज फैसिलिटेट होगा, यानी कि और एंड शेयरिंग नॉलेज बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर. और क्या है, वहाँ पे ओनली नॉट मेमोराइजेशन थी, बट यहाँ नॉलेज का शेयरिंग हो रहा है किसके बीच, स्टूडेंट और टीचर के बीच. यानी टुडेज लाइफ देयर इज not only
teacher centered learning means there will be student and teacher will be communicated for sharing their content knowledge or their experiences, as well as in fourth point it is passive learning process, यानी वो कैसी थी पैसिव लर्निंग प्रोसेस, यानी सिर्फ और सिर्फ टीचर ही पढ़ा रहा था, स्टूडेंट्स को पढ़ना हो या ना पढ़ना हो टीचर पढ़ा के चला जाता था, यानी स्टूडेंट्स को कोई इंटरेक्ट नहीं होता था टीचर के बीच में। और क्या होता था कि स्टूडेंट्स अपने ही समझ में सिर्फ ऐसे बैठा रहता था, टीचर को जो करना है करे। बट इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, इन टूडेज क्लासरूम, इट इज़ एन एक्टिव लर्निंग प्रोसेस, यानी ये क्या है आज एक्टिव लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि नो सपोज आजकल डिफरेंट अप्रोचेस एजुकेशन में यूज हो रहे हैं, जैसे कि आंसर क्वेश्चनिंग, देन उसके बाद आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ जैसी एक्टिविटीज़ की जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को एक्टिव रखने के लिए टीचर क्या करता है, टीचर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसरिंग करता है ताकि स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहे और कैसा प्रोसेस बने, एक्टिव लर्निंग प्रोसेस। नाउ द फिफ्थ वन ऑफ द ट्रेडिशनल क्लासरूम इज इट इज टीचर सेंटर्ड, यानी कि ये क्या है ओनली द एंशिएंट सिस्टम। ट्रेडिशनल क्लासरूम क्या था, वहाँ पे ओनली ट्रेडिशनल में क्या था टीचर सेंटर था, यानी कोई बच्चे का अधिकार यानी कि स्टूडेंट्स का अधिकार नहीं था कुछ बोलने का, और सिर्फ टीचर ही पढ़ाता था और अपना नॉलेज स्टूडेंट्स को देता था। बट इन टूडेज मीन्स कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम इट इज स्टूडेंट सेंटर, यानी इट इज नॉट ओनली स्टूडेंट सेंटर बट there are some of percentage teacher is also involving, but the teacher's role is facilitator और guide, बट ज़्यादातर स्टूडेंट सेंटर रहता है, क्योंकि स्टूडेंट के पास कोई भी कंफ्यूजन है तभी वो टीचर के पास जाएगा, और स्टूडेंट के पास अपने भी कुछ आइडियाज़ है, क्योंकि इट इज़ डिफरेंट रिसोर्सेज मटेरियल, यानी उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, और वो जैसे कि सपोज मेरे पे कोई प्रॉब्लम है और मैं सर के पास जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कंटेंट नॉलेज है, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज है, मैंने कुछ देखा है, तभी मुझे कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तभी मैं सर के पास जाऊँगा, और इट इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड। देन ट्रेडिशनल क्लासरूम का सिक्स्थ पॉइंट, इट इज़ नॉट टेक्निकल ओरिएंटेड, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रादर इम्पोर्टेंट फीचर्स और इम्पोर्टेंट मेजर डिफरेंस, इट इज़ नॉट टेक्निकल ओरिएंटेड, यानी वहाँ कोई टेक्निकली कोई फैसिलिटी नहीं थी, जैसे कि आज हमारे पास स्मार्टफोन है, प्रोजेक्टर है, और आज ऑनलाइन लर्निंग भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। इट इज़ फुली टेक्निकल ओरिएंटेड, बट कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम मीन्स आज का क्लासरूम फुली टेक्निकल ओरिएंटेड, यानी अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, मीन्स इट इज़ फुली टेक्निकल ओरिएंटेड। आपके स्मार्टफोन में आप देख रहे हैं ये क्या है, टेक्निकल टूल है, मीन्स इट इज़ फुली टेक्निकल ओरिएंटेड। देन सेवन or the last point of the traditional classroom, the last difference, students will be inert knowledge, यानी वहाँ क्या था, स्टूडेंट को सिर्फ बैठे ही रहना था और टीचर सिर्फ बताते ही रहते थे, क्योंकि वो इंटरेक्टिव प्रोसेस नहीं थी इन ट्रेडिशनल क्लासरूम। बट इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम देयर इज स्टूडेंट्स विल बी मल्टी टैलेंटेड, बिकॉज nowadays due to different approaches in education, कॉलेजेस जो टीचर ट्रेनिंग दे रही है, वो कॉलेजेस क्या कर रही है, अपने टीचर मल्टी टैलेंटेड टीचर को प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि आने वाली जनरेशन क्या है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम को यदि स्टूडेंट्स मल्टी टैलेंटेड है तो टीचर को भी मल्टी टैलेंटेड बनना होगा, स्टूडेंट से भी बेहतर बनना होगा। उसके बाद क्योंकि स्टूडेंट्स के पास डिफरेंट रिसोर्सेज है, इसलिए वो मल्टी टैलेंटेड होगा, क्योंकि यहाँ क्या होता था, इनट नॉलेज यानी कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अनुसार ही बढ़ाया जाता था, बट यहाँ मल्टी टैलेंटेड बना जाता है, क्योंकि डिफरेंट गेम्स प्ले करते हैं, और सब्जेक्ट हो गए जैसे कंप्यूटर और टेक्निकल सब्जेक्ट भी ऐड किए जाते हैं, यानी स्टूडेंट्स क्या था, मल्टी टैलेंटेड। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल क्लासरूम एंड कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। लेट अस रिपीट द पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेडिशनल क्लासरूम इट इज बेस्ड ऑन बेसिक स्किल, इट इज फोकसेस ऑन द बिग कॉन्सेप्ट्स, देन it is generally based on textbook, then it is based on different resource materials, it is process of rote memorization or topic or unit, it will be facilitators and sharing knowledge between the student and the teacher, it is passive learning process, and on the contrary it is active learning process. Then the fifth one of the traditional classroom is it is teacher centered, and on the contrary, on the other hand, it is student centered. It is not technical oriented, it is
fully technical oriented. It is fully techno oriented. Students will be innate knowledge and the students will be multi-talented. So I hope you have understand the difference between the traditional classroom and constructive classroom. So if you like our videos, then share it to your friends and do like and do subscribe our channel and share with your relatives and your friends. So bye guys, I hope you have understand. Thank you.